Next article is Diophantine equation ax plus by equal to c. An equation in one or more unknowns that is to be solved in integers, this is important, is referred as Diophantine equation. Now, let us take notation a1, a2, a3, a4 for constants, known numbers, x1, x2, x3, x4 for unknown variables, and b is also known. Then this is an example of Diophantine equation. लेकिन हमको जो पढ़ना है वो सिंपल इक्वेशन पढ़नी है इन टू अननोन्स. The simplest type of Diophantine equation that we shall consider is the linear Diophantine equation of the form ax plus by equal to c in two unknowns x and y. A, B, C are given integers and both a and b should not be equal to 0. यदि a और b 0 हो और c नॉन जीरो तो वो इक्वेशन को कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे. ठीक है. A given linear Diophantine equation has number of solutions. That is, what solution means? Values of unknown which satisfy the equation. As an example, let us see 3x plus 6y equal to 18. तो ट्रायल और एरर से x और y की वैल्यू सपोज की जा सकती है. देखिए हमारे पास कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है. 4 and 1 satisfy the equation. -6 and 6 satisfy the equation. 10 and -2 satisfy the equation. Therefore, these are the solutions for equation 1. These pairs of x and y are solutions for equation 3x plus 6y equal to 18. ऐसा भी हो सकता है कुछ इक्वेशन जिसको सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना हो. फॉर एग्जांपल 2x plus 10y equal to 17. अब यहाँ कोई भी x और y यदि हम सपोज करें तो 2 times x 10 times y होने की वजह से ये हमेशा इवन इंटीजर दिखेगा और राइट हैंड साइड में 17 ऑड इंटीजर है. तो कोई भी x और y यदि यहाँ रखे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बैलेंस ही नहीं हो पाएगी. तो therefore such equation have no solution at all. So what are the conditions so that we can solve equation ax plus by equal to c? The condition of solvability is mentioned in the next theorem. तो इसके पहले डिफरेंट सॉल्यूशंस मिल रहे थे. कंडीशन सॉल्यूशन फाइंड करने की थ्योरम में मेंशन की हुई है. थ्योरम सेज the linear Diophantine equation ax plus by equal to c has a solution if and only if d divides c, where d is greatest common divisor of a and b. ये दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यदि c को डिवाइड कर रहा हो तो सॉल्यूशन होगी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. टू पार्ट प्रूव करने होंगे. अब कितने सॉल्यूशन मिलेंगे उसके लिए आगे बात की गई है. इफ x नॉट एंड y नॉट is any particular solution of the equation, then all other solutions are given by x equal to x naught plus b upon d. b में उसका greatest common divisor a और b का डिवाइड करेंगे तो this will be integer into t. y equal to y naught minus a upon d, again this is an integer, into t where t is arbitrary. तो ये arbitrary integer जैसे पुट करते जाएंगे वैसे वैसे ये x और y हमको infinitely many solutions प्रोवाइड करेंगे. प्रूफ तो पहले कुछ जनरल डिस्कशन है, पहले जनरल बातें कर लेते हैं और फिर बाद में हम दो पार्ट प्रूव करेंगे. एक नेसेसरी पार्ट और डायरेक्ट पार्ट और दूसरा सफिशिएंट पार्ट, कॉन्वर्स पार्ट. तो पहले जनरल बातें. एनी लीनियर इक्वेशन इन टू अननोन्स हैविंग इंटीजर कोएफिशिएंट्स कैन बी पुट इन द फॉर्म ax plus by equal to c. दैट इज लीनियर Diophantine इक्वेशन की बात हो रही है, वेयर a and b a b c are integers. अब इनके सॉल्यूशंस मतलब x और y की वैल्यू की बात करनी है तो ये a b c पर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या कंडीशन नहीं होनी चाहिए ये देखते हैं. वी कंसीडर
the problem of identifying all the solution in which x and y are integers. Integer solution की बात कर रहे हैं. Now if all are zero, a b c सारे यदि x are zero, तो कोई भी x और y रखो, 0 equal to 0 मिलेगा. यानी all pairs of x y, pairs of integers is a solution of equation 1. तो ऐसे सॉल्यूशन में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है. अच्छा, तीनों एक साथ 0 हुआ तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी, तो ये कोई केस काम का नहीं है. देखो, whereas if a and b are 0, लेफ्ट हैंड साइड 0 और c नॉन 0 हो, तो जब a और b यदि 0 रहेगा तो x और y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमेशा 0 दिखेगा, और c नॉन 0 है तो दोनों बैलेंस नहीं होंगे. तो ऐसे समय इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन एट ऑल. तो तीनों एक साथ 0 नहीं चाहिए. तीनों एक साथ 0 रहे तो एनी पेयर ऑफ x एंड y विल बी सॉल्यूशन, लेकिन वो कोई काम के नहीं. दोनों a और b एक साथ 0 नहीं होना चाहिए. यदि दोनों एक साथ 0 होते हैं और c 0 नहीं होता है तो इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन. तो हमको बात करनी होगी when at least one of a and b is non-zero. So we suppose that at least one of a and b is non-zero. And जो GCD of AB की रिजल्ट में बात हो रही है, तो let D be the GCD of A and B. Now, if D does not divide C, तो क्या होगा? देखो, यदि मान लो इनका कोई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, हम यदि ये पूरे इक्वेशन को वो D से डिवाइड करें, तो यहां तो इंटीजर रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन डिनोमिनेटर में C अपॉन D आ जाएगा. दैट विल बी अ फ्रैक्शन. अब लेफ्ट हैंड साइड में कोई पार्ट है और राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन है, तो जब x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो फ्रैक्शनल आंसर देंगे, रैशनल नंबर में आंसर देंगे. मतलब उस समय इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे. ठीक है? कब? जब d डज नॉट डिवाइड c यदि हो रहा हो. क्यों? डिवाइड करने के बाद में राइट हैंड साइड विल बी अ फ्रैक्शन. जब डिवाइड ही नहीं हो रहा होगा तो पूरा पूरा डिवीजन नहीं जाएगा, वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में बचा रहेगा c अपॉन d, और यहाँ इंटीजर्स पार्ट मिलेंगे. तो x और y की वैल्यू जब इवैल्यूएट करेंगे तो वो रैशनल नंबर्स होगी. तो ये तो बात क्लियर है कि d डज नॉट डिवाइड यदि c हो तो इंटीजर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होंगे. मतलब अब जो भी हो रहा होगा वो d डिवाइड c के लिए ही हो रहा होगा. तो अब दो पार्ट, एक डायरेक्ट पार्ट और एक कॉन्वर्स पार्ट लेकर अब थ्योरम को आगे कंटिन्यू करते हैं, प्रूफ आगे कंटिन्यू करते हैं. नेसेसरी कंडीशन. थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है वो गिवन होगा, ax plus by equal to c has solutions. लेकिन जब डेफेंटाइन इक्वेशन की बात करें, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ डेफेंटाइन इक्वेशन, तो दोज आर द इक्वेशन व्हिच हैज सॉल्यूशन इन इंटीजर्स की बात हो रही थी. तो सॉल्यूशंस इन इंटीजर्स, थ्योरम के स्टेटमेंट में केवल सॉल्यूशन की बात है, बट वी फाइंड सॉल्यूशंस इन इंटीजर्स एंड क्लेम d divides c. Okay, so we have d is equal to GCD of a and b. This implies d divides a and d divides b by definition of GCD. So therefore a is equal to say md and m यूज कर लेते चलेगा, और b अलग सिंबल यूज कर लो क्योंकि m को एलसीएम के लिए यूज किया हुआ है. a is equal to kd and b is equal to say ld, where k and l are integers. ये बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हो गया. ठीक है? अब क्या कहा है? इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन इन इंटीजर एज इक्वेशन ax plus by equal to c has solution in integer से, अपने तरफ से एक ले लेते से x1 and y1. तो जैसे हमने इंटीजर सॉल्यूशन x1 और y1 सपोज किया, इसका मतलब ये x1 और y1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो देयरफॉर वी हैव ax1 plus by1 equal to c.
अब ऑलरेडी इस केस में a की और b की कुछ वैल्यूज है, वो पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a है kd इंटू x1 प्लस b है ld इंटू y1 इक्वल टू c। d कॉमन लिया जा सकता है, d कॉमन kx1 प्लस ly1 इक्वल टू c। इसके लिए कुछ नया इंटीजर लिख सकते हैं, दैट इज d इज इक्वल टू से p इक्वल टू c, वेयर p is kx1 plus ly1 which will be an integer, क्योंकि k और l इंटीजर है, x1 और y1 इंटीजर है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर की वजह से p will be an integer। तो therefore d into p is equal to c imply d divides c, c is equal to dp, c is equal to dp, c is some multiple of d, यही हम चाह रहे थे, d divides c। तो this proves necessary condition। अब सफिशिएंट कंडीशन में रोल इंटरचेंज हो जाएगा, तो वो मेंशन कर देते हैं। सफिशिएंट कंडीशन में नाउ गिवन इज d divides c, claim equation as integer solution। So start with the data as d divides c, so therefore c is some multiple of d, तो उसको सपोज कर लेते हैं k into d, where k is integer। तो this imply k is equal to c by d, which is an integer, which is an integer। Now we have equation ax plus by, वो कॉमन नंबर दिया हुआ था स्टार्टिंग में, ax plus by equal to c। ये इक्वेशन को d से डिवाइड कर देते, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 थ्रू आउट बाय d, we get d से डिवाइड करने पर we get a by d x plus b by d y equal to c by d, that is इनको कुछ, अब a डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a एंड b, तो दिस विल बी डेफिनेटली एन इंटीजर, तो इसको कुछ नोटेशन दे देते हैं, से q1 x प्लस q2 y, और ये c by d तो k है, where q1 is a by d is integer, q2 is b by d is integer, और k तो ये था ही c by d। अब ये जो q1 और q2 इंटीजर है, ये किस तरह के इंटीजर है देखो, एंड इनका जीसीडी यदि देखा, q1 q2 का जीसीडी of q1 and q2 is equal to q1 is a by d b by d, तो 1 by d कॉमन है, 1 by d कॉमन, जीसीडी लगाना है, जीसीडी ऑफ ए बी, एंड जीसीडी ऑफ ए बी को तो d कहा था स्टार्टिंग में ही, तो which is equal to 1 by d into d, that is equal to 1। so this q1 and q2 are integers जिनका जीसीडी 1 है, मतलब they are relatively prime, so therefore GCD of q1 q2 is equal to 1, imply q1 and q2 are relatively prime integers। तो जैसे रिलेटिवली प्राइम इंटीजर्स आ जाए, तो रिलेटिवली प्राइम में हमने एक रिजल्ट प्रूव किया है कि दिस वन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ q1 एंड q2। तो देयरफॉर बाय अ रिजल्ट
by a result, this one is equal to some linear combination of q1 and q2. तो वो linear combination को सपोज करते हैं x1 q1 plus x y1 q2, x1 q1 plus y1 q2, where x1 and y1 belongs to I. अब इसको कंक्लूड कराना है ax plus by equal to c has a solution के लिए. अभी हमारे पास ये रिलेशन है 1 is equal to x1 q1 plus y1 q2. तो इसको मल्टीप्लाई कर देते थ्रू आउट बाय k. मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय k. We get line above equation by k. We get k is equal to kx1 q1 plus ky1 q2. That is k. This can be written as q1 kx1 plus q2 ky1. Means if we take this as x naught and this as y naught, say k is equal to q1 x naught plus q2 y naught, where x naught is equal to kx1 और y naught is equal to ky1. तो इसका मतलब x naught and y naught exist such that they satisfy the equation. ये है q1x plus q2y is equal to k. इसको नंबर 2 दे दो, नंबर 2 दे दो. तो देयर एग्जिस्ट x naught and y naught satisfying इक्वेशन 2. और ये आई कहां से थी? इक्वेशन 1 से आई थी कुछ डिवाइड करने के बाद में. तो देयरफॉर x naught y naught satisfies equation 2 and hence equation 1, and they are integers. x naught and x1 are integers. यहीं पर लिख देते हैं belongs to I. k इंटीजर है, x1 इंटीजर है, k इंटीजर है, y1 इंटीजर है. तो x naught is integer, y naught is integer. तो conclusion is equation 1 has integer solution. Therefore equation 1 has integer solution. This completes sufficient condition. Follows the first part of result. अभी आगे और बताना है जनरल सॉल्यूशन या ऑल सॉल्यूशंस के बारे में बात करनी है. देखते हैं उसके लिए आगे का प्रूफ. फर्दर पार्ट ऑफ दैट थ्योरम टू फाइंड ऑल सॉल्यूशंस. इनिशियली एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो टेक x इक्वल टू x नॉट एंड y इक्वल टू y नॉट बी एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. तो ये x नॉट और y नॉट इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे. मींस वी हैव ax नॉट प्लस by नॉट इक्वल टू c. We want to find all solutions. So in order to find all solutions of equation 1, let us denote x dash and y dash be any other integral solution of equation 1. इसका मतलब हमको फाइंड क्या करना है? x dash और y dash की वैल्यूज फाइंड करनी है. ये अदर देन ट्रिवियल सॉल्यूशन, इनिशियल सॉल्यूशन होंगे. तो इनको यदि सॉल्यूशन सपोज क्या इक्वेशन 1 का, तो वी हैव ax dash plus by dash equal to c.
अब ये दोनों इक्वेशन में c राइट हैंड साइड सेम है, तो हम दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं। अब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड लिखते समय ax0 plus by0 is equal to ax dash plus by dash लिखा है, या फिर ये लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड में हो सकता था। चलिए अभी जो लिख दिया है उसी को कंटिन्यू करते हैं। ax0 plus by0 is equal to ax dash plus by dash. Now collect the terms of a and b. तो a की तरफ लाइए टर्म को, a कॉमन x0 minus x dash is equal to b उधर लेकर गए y0 minus y dash minus y0. सो ये जो एक्सप्रेशन है x0 minus x dash और y dash minus y0, ये डिपेंड कर रहा है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसी है इस पर। इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, इसका रोल क्या है आगे समझ में आएगा। नाउ डिवाइड बोथ साइड बाय d, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ a and b. So a by d into x0 minus x dash is equal to b by d y dash minus y0. इसके लिए नोटेशन हमने q1 लिया था, इसके लिए नोटेशन q2 लिया था, मेंशन कर दो। Where q1 q2 satisfy the condition gcd of q1 q2 is equal to 1, मतलब they are relatively prime। अच्छा अब ये जो एक्सप्रेशन है, तो ये एक्सप्रेशन में हम कह सकते हैं q2 into y dash minus y0 some integer multiple of q1, so therefore q1 divides q2 into y dash minus y0 by definition of divisibility। बट q1 और q2 ये रिलेटिवली प्राइम है, तो फिर हमने थ्योरम देखा था रिलेटिवली प्राइम में कि यदि मान लो दो रिलेटिवली प्राइम है तो q1 will divide the other factor y dash minus y0, means this y dash minus y0 is some integer multiple of q1, let that be t, some arbitrary integer। अब यहां से y dash की वैल्यू लिखते समय ये y0 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो y0 प्लस t टाइम्स q1, हमको चाहिए था y dash इज इक्वल टू y0 माइनस t टाइम्स q1। अब ये कैसे होगा जस्ट पहले पूरा प्रूफ कंप्लीट कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ये तो हो गया y dash, वैल्यू भी रख देते हैं, q1 इज a by d, so this is our y dash, दिस इज y dash, इसको कुछ नोटेशन दे देते हैं 1। नाउ स्टार इंप्लाई, ये जो वैल्यू है y dash minus y0 की t q1 यदि यहां रखा तो स्टार इंप्लाई q1 x0 minus x dash is equal to q2 into t times q1, तो q1 डिवाइड हो गया, बचा x0 minus x dash is equal to q2 into t। x dash की वैल्यू चाहिए, उसको शिफ्ट करोगे, इसको इधर ले आओ, तो x dash is equal to x0 minus q2 into t। अब हमको यहां चाहिए था प्लस, लेकिन ये आ रहा है माइनस, रहने दो, x dash is equal to x0 minus q2 की वैल्यू रख देते b by d into t, नंबर 2। अब दोनों को यदि ऑब्जर्व करें तो ये x डैश और ये y डैश की वैल्यू हमको जनरल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही फॉर आर्बिट्ररी इंटीजर t, लेकिन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में यहां प्लस था और यहां माइनस था। कंफर्म कर लो एक बार, x डैश के साथ में प्लस और y डैश के साथ में माइनस, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, t इंटीजर है तो माइनस t भी इंटीजर होगा, और आर्बिट्ररी इंटीजर है तो since t is integer therefore minus t is also integer, so replace this t by minus t। तो जैसे इसको माइनस टी से रिप्लेस करेंगे जो हमको एक्सप्रेशन चाहिए था x डैश और y डैश का वो मिल जाएगा, एंड दैट विल कंप्लीट द प्रूफ ऑफ थ्योरम सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर डायफरेंटाइन इक्वेशन ax by c। तो ये जो बातें हैं इसको मेंशन कर देते हैं। But t is arbitrary integer, therefore minus t is also an integer। Replace t by minus t in 1 and 2, replace t by minus t in 1 and 2, we get
x dash is equal to x naught plus b by d into t, y dash is equal to y naught, t की जगह माइनस टी से रिप्लेस करने पर माइनस a by d into t, where t is arbitrary integer. तो ये जो सेट है, दिस सेट, इसको कुछ नोटेशन दे देते हैं. Therefore, set A gives all solutions of equation 1 in integers. और अब थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो गया. This completes the proof. Few remarks related to this theorem. Number 1, if GCD of A and B is 1 and x naught y naught is any particular solution, then the equation ax plus by equal to c has all solutions of the form. अब ये जनरल सॉल्यूशंस थे, ऑल सॉल्यूशंस थे, तो d तो 1 हो गया, तो d1 हो गया, तो ऑल सॉल्यूशंस आर गिवन बाय x डैश और y डैश को एक नोटेशन दिया था. इन जनरल वी राइट x इज इक्वल टू x नॉट प्लस b into t and y equal to y naught minus a into t, where t is arbitrary integer. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यदि 1 है तो ठीक है. तो ये पर्टिकुलर केस हो गया. अगेन हमने जीसीडी ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स पढ़ा था, उसका रोल क्या है वो यहां समझ में आ रहा है. इफ ए बी सी हैव अ कॉमन डिवाइजर, तो स्टार्टिंग में ही हम वो इक्वेशन को कॉमन डिवाइजर से डिवाइड कर देंगे. अब डिवाइड करने के बाद में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं बचा अदर देन 1, तो इट कैन बी डिवाइडेड आउट फ्रॉम द इक्वेशन ax by इक्वल टू c. एक बार डिवाइड हो गए, जितने भी कॉमन डिवाइजर होगा डिवाइड हो गया, तो अब अदर देन 1 कुछ बचा नहीं. सो वी कैन अज्यूम दैट जीसीडी ऑफ a b c इज 1. मतलब दे आर रिलेटिवली प्राइम इन ट्रिपलेट. a b c आर रिलेटिवली प्राइम इन ट्रिपलेट. अब ये यदि कंक्लूजन है तो इसके साथ में आवर कंक्लूजन कैन बी स्टेटेड एज इक्वेशन इफ a b c आर रिलेटिवली प्राइम इन ट्रिपलेट की बात हो रही है, तो इक्वेशन इज सॉल्वेबल if and only GCD of A and B is 1. A and B are relatively prime in pairs यदि हो तो ये इक्वेशन को सॉल्यूशन मिल सकता है. अब ये जो कुछ पढ़ा है अभी तक, इससे रिलेटेड डिफरेंट लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए क्या क्या लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो कवर करते हैं. तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. Example: determine all solutions in the positive integers of Diophantine equation 18x plus 5y equal to 48. ओके, तो सबसे पहले तो चेक करना होगा कि इक्वेशन सॉल्वेबल है या नहीं है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. तो से स्टेप 1 to check the solvability of 18x plus 5y equal to 48. नंबर 1. कई बार इतना भी क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि चेक वेदर द फॉलोइंग डायफंटाइन इक्वेशंस आर सॉल्वेबल और नॉट. ठीक है, तो एक वो लैंग्वेज हो गई प्रॉब्लम की. एक लैंग्वेज हो गई डिटरमाइन ऑल सॉल्यूशंस इन द इंटीजर ऑफ गिवन डायफंटाइन इक्वेशन. ये सेकंड टाइप का प्रॉब्लम हो गया. और थर्ड टाइप का डिटरमाइन ऑल द सॉल्यूशन इन पॉजिटिव इंटीजर्स. ऐसी 3 टाइप के क्वेश्चंस एक ही प्रॉब्लम के साथ एक्सप्लेन कर देते हैं. तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with ax plus by equal to c, we get
a इक्वल टू 18, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 48। तो हमको a और b का जीसीडी फाइंड करना होगा, a और b का जीसीडी। देन d is equal to gcd of a and b is equal to gcd of 18 and 5। अब ये तो सिंपल दिख रहा है, 18 और 5, 5 इज प्राइम नंबर एंड 18 इज इवन नंबर, तो इन दोनों का जीसीडी तो तुरंत बताया जा सकता है। यस, जीसीडी इज 1 डायरेक्ट। यदि मान लो नहीं आ रहा हो तो फिर वो डिवीजन इंक्लूडेड एल्गोरिथम से फाइंड किया जा सकता है। तो दिस इज सिंपल, इट इज इक्वल टू 1, तो d इक्वल टू 1 हो गया। तो d इक्वल टू 1 हो गया, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि इफ जीसीडी ऑफ a एंड b इज इक्वल टू 1 देन इक्वेशन इज सॉल्वेबल। या फिर थ्योरम की मदद से यदि लेना है तो दिस 1 डिवाइड्स ऑब्वियसली 48। थ्योरम की यदि हेल्प लेना हो तो 1 डिवाइड्स 48, और यदि जो हमने रिमार्क लिखे थे तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 1, तो देयरफॉर इक्वेशन इज सॉल्वेबल। दोनों में से जो भी अप्रोच समय पर समझ आ जाए लिख सकते हैं। देयरफॉर d डिवाइड्स c, है ना, as 1 divides 48, 1 divides 48 in, therefore by a result, जो अभी हमने थ्योरम प्रूव किया, इक्वेशन 1 has solutions in integers। तो ये तो केवल हमने चेक किया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा या नहीं होगा स्टेप 1 में। तो दिस मच इज स्टेप 1। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। स्टेप 2, टू फाइंड, कंफर्म हो गया इक्वेशन एज सॉल्यूशन, तो टू फाइंड इंटीजर सॉल्यूशंस, इंटीजर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1। ऑफ कोर्स इक्वेशन 1 की बात हो रही है। तो एज जीसीडी इज 1, जीसीडी ऑफ 18 and 5 is equal to 1, so therefore this 1 can be expressed as linear combination of 18 and 5। therefore 1 is equal to some linear combination of 18 and 5। तो जब ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमको मिल जाएगा तब वहां 18 के साथ जो इंटीजर होगा, 5 के साथ जो इंटीजर होगा, वहां से हम एक इनिशियल सॉल्यूशन की बात कर सकेंगे। तो ये कैसे एक्सप्रेस करना है ये पहले समझते हैं। तो उसके लिए वही इंक्लूडिंग एल्गोरिथम से प्रोसेस आनी चाहिए हमारे पास में। तो देखो 18 divided by 5 gives 5 is a 15, remainder is 3। now divide 5 by this remainder 3, 3 1s are 3, remainder is 2। divide 3 by 2, 2 1s are 2, remainder is 1। अब ये रिमाइंडर से इसको डिवाइड करते हैं, 1 2s are 2, रिमाइंडर इज 0। तो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज 1। ये तो हमने ओरली लिख लिया था यहाँ पर, 18 और 5 का जीसीडी 1 डायरेक्ट लिख लिया था। डिवीजन एल्गोरिथम, सॉरी यूक्लिडियन एल्गोरिथम से भी लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर इज 1 कंफर्म होता है। इसकी हेल्प कैसे लेना है ये देखिए। तो देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज, सबसे पहले 18 इज इक्वल टू क्वोशंट 3, ये डिवाइजर 5 प्लस रिमाइंडर 3। नेक्स्ट 5 इज इक्वल टू, दिस 5 इज इक्वल टू क्वोशंट 1 into 3 प्लस रिमाइंडर 2। नेक्स्ट 3 इज इक्वल टू क्वोशंट 1 into 2 प्लस रिमाइंडर 1। नेक्स्ट 2 इज इक्वल टू क्वोशंट 2 into 1। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इनको बैकवर्ड ऑर्डर में ले जाकर हम 1 को
5 और 18 में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो काम करते हैं। यूजिंग इक्वेशंस इन बैकवर्ड ऑर्डर, यूजिंग इक्वेशंस इन बैकवर्ड ऑर्डर वी गेट, सबसे पहले तो लिखते हैं 3 इंप्लाई 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 टाइम्स 2, तो 3 यानी 1 इंटू 3 माइनस 1 टाइम्स 2, ये हमारा जीसीडी था, यहां से शुरू कर रहे हैं। अब फिर ये रिमाइंडर को कन्वर्ट करते हैं 3 और 5 में, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 3 अपनी जगह माइनस 1 इंटू, नाउ दिस 2 कैन बी रिटन एज 5 माइनस 1 इंटू 3, तो 5 मतलब 1 इंटू 5 लिखो, 1 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 3, कहां से आया ये, बाय इक्वेशन 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 के साथ 3 है और ये माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया 2 टाइम्स 3, ये मल्टीप्लाई होगा माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, यानी 1 टाइम्स 3 1 टाइम्स 3 2 टाइम्स 3 और ये माइनस 1 टाइम्स 5। अब नेक्स्ट रिमाइंडर 3, इसको रिप्लेस करो 5 और 18 के टर्म में, तो 2 टाइम्स दिस 3 इज 18 माइनस 3 टाइम्स 5, तो 18 मतलब 1 टाइम्स 18 बोलो उसको, 1 टाइम्स 18 माइनस 3 टाइम्स 5 माइनस 1 टाइम्स 5, ये आया बाय 1, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो ये हो गया 2 टाइम्स 18 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 टाइम्स 5 माइनस 1 टाइम्स 5, तो ये बन गया माइनस 7 टाइम्स 5। दैट मीन्स 18 into x plus 15 into y, where x, इसको इनिशियल सॉल्यूशन कहा है ना, तो हम इसको x नॉट बोल देते हैं, x नॉट और y नॉट, तो x नॉट इज इक्वल टू 2 एंड y नॉट इज इक्वल टू माइनस 7, दे आर इंटीजर्स। तो इस तरह से 1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 18 एंड 5, 18 एंड 15, 15 कहां से आया, 5 था, सॉरी 7 टाइम्स 5 5, इस तरह की कभी कभी मिस्टेक हो जाती है लिखते लिखते। 1 इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 18 एंड 5, ये मिल गया। ये जो सिंबल x नॉट और y नॉट लिए ना, इसको अभी हम फिलहाल x1 और y1 लिखते हैं और पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं वो भी एक्सप्लेन करते हैं। अभी इसको x1 और y1 बोल देते हैं, से x1 और y1, so where x1 is 2 and y1 is minus 7, तो 1 is linear combination of x and 18 and y, इतना तक आ गया है। नाउ पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेने के लिए एक फॉर्मूला है, वो लिखते हैं। नाउ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन बाय नोटेशन ध्यान देना, उसके लिए नोटेशन x नॉट y नॉट लिया हुआ है, तो x नॉट इज इक्वल टू, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेने के लिए ये x नॉट और y नॉट को याद रखिएगा। अब यहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो दिस इंप्लाई x नॉट इज इक्वल टू, c था हमारे इक्वेशन में 48 इंटू x1 है 2 अपॉन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 1, इसकी वैल्यू लिख लेंगे इज इक्वल टू 96 एंड y नॉट इज इक्वल टू, वैल्यू रख दो, c था 48 इंटू y1 है -7 अपॉन b है 1, इसकी वैल्यू लिख दो, नेगेटिव वैल्यू है 6 5 3 3 6, कैलकुलेशन करके देख लो बराबर है क्या x नॉट और y नॉट की वैल्यू। अब जैसे ही हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल गया है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हेल्प से रिजल्ट गिव्स all solutions in the form x equal to x naught plus b by d into t and y is equal to y naught minus a by d into t. Put the values.
पुट द वैल्यूज। तो x इक्वल टू x नॉट 96 प्लस b था 5 अपॉन d था 1, t रहेगा अपनी जगह, एंड y इज इक्वल टू y नॉट माइनस 336 माइनस a was 18 अपॉन 1 इंटू टी। ये नहीं भी लिखा तो चलेगा क्योंकि जीसीडी 1 है, तो हमने रिमार्क में लिखा था x नॉट प्लस बी टी एंड y इज y नॉट माइनस ए टी। लेकिन ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट में सारे जीसीडी 1 नहीं होगा, तो भी ये फॉर्मेट में यदि सॉल्यूशन करेंगे तो सब फिट होते चले जाएंगे। डिनोमिनेटर में 1 लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब एक ही है, ठीक है। तो जनरल फॉर्मेट की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। तो दैट इज x is equal to 96 plus 5t and y is equal to minus 336 minus 18t, where t is arbitrary integer. This gives all solutions कहो, every solution कहो, general solution कहो, this gives all the integer solutions of given equation 1। इक्वेशन को नंबर 1 दिया होगा। तो कई बार ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता है, फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। अब थर्ड लैंग्वेज का प्रॉब्लम कि फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस। अब देखो ना, यहां पर तो नेगेटिव में आ रहा है, यदि मान लो ये कोई टी पॉजिटिव हो तो इसका आंसर नेगेटिव में दिखेगा। तो जब थर्ड लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन, तब क्या करना होता है आगे देखते हैं। नाउ स्टेप 3, टू फाइंड ऑल पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो अभी हमारे पास ऑल सॉल्यूशंस तो आ गए हैं। फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर पॉजिटिव इंटीजर सॉल्यूशंस we must have x is greater than 0, y is greater than 0, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, कई बार यहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी लिखा होता है। लैंग्वेज क्या है प्रॉब्लम में, वो बहुत केयरफुली रीड करके आंसर देने होंगे। तो जब नॉन नेगेटिव की बात हो रही हो तो नेगेटिव नहीं है, 0 की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उस केस में मतलब जब नॉन नेगेटिव इंटीजर सॉल्यूशन की बात हो रही होगी, तब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन एज्यूम करनी है। अभी पॉजिटिव की बात हो रही तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ये लेकर चल रहे हैं आगे। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y, तो दिस इंप्लाई 96 प्लस 5t इज ग्रेटर देन 0। इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं, यहां पर रखते हैं -336 माइनस 18t इज ग्रेटर देन 0। इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी फॉर t की क्या रेंज आ रही है वो देखेंगे, और फिर वहां से t क्या एग्जैक्टली होगा ये बात करते हैं। तो दिस इंप्लाई t को यहां रहने देते हैं, 5t इज ग्रेटर देन -96, उधर शिफ्ट किया, तो देयरफॉर t इज ग्रेटर देन -96 by 5। इधर से t पॉजिटिव चाहिए, उसको उधर ले लो, तो 18t, अच्छा उसको उधर ले लिया तो मतलब यहां रहेगा -336 इज ग्रेटर देन 18t, उधर शिफ्ट किया, तो देयरफॉर 18 को डिवाइड करते हैं, -336 डिवाइडेड बाय 18 इज ग्रेटर देन t। और डिवीजन होता है कि इसका 3 से डिवीजन हो जाएगा, धीरे धीरे रिड्यूस करते हैं, तो दैट इज -112 बाय 3 6 18, 3 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, इज ग्रेटर देन t। और कुछ डिवीजन होता है क्या 6 का, उसको जितना रिड्यूस कर सकते हैं उतना रिड्यूस करके फिर दोनों को कंबाइन करके t की रेंज लिखेंगे। 2 से फर्दर डिवाइड करके लिख दिया, 2 5 2 6 12 2 3। तो कंबाइन कर लेते हैं, 10, ये तो और फर्दर डिवाइड होने वाला नहीं है, तो 10
t is less than and greater than, तो t is less than what, यहां से देखा तो t is less than -56/3 and t is greater than -96/5। अब t की इंटीजर वैल्यू चाहिए, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो इसको एग्जैक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करके उनके बीच में इंटीजर वैल्यू क्या ली जा सकती है ये कैलकुलेट करते हैं। डेसिमल नंबर्स फाइंड कर लिए, -19.2 लेस देन t लेस देन -18.66। नाउ नंबर लाइन पर इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं और t का इंटीजर वैल्यू सपोज करते हैं। तो नंबर लाइन पर जीरो के लेफ्ट में होंगे सारे नेगेटिव नंबर, मान लो यहाँ -18 है, तो -18 है तो अभी -18.1 -18.2 ऐसा करते करते यहाँ कहीं तो भी -18.66 वगैरह होगा। अब ये नंबर नेगेटिव सेंस में है तो सब लेफ्ट साइड में और मैग्नीट्यूड वाइज लेफ्ट साइड में बढ़ते चले जाएंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं -19 आएगा, -18.99 ऐसा करते हुए -19 आ गया, फिर उसके और आगे चलेगा तो -19.1 -19.2 एक्सेट्रा। तो ये दो नंबर -19.2 और -18.66 के बीच में एक इंटीजर -19 दिखता है। तो दिस इंप्लाई therefore take p is equal to -19 as an integer in this range। तो t इक्वल टू -19 मिल गया। अब ये -19 ये हमारे रिलेशन में पुट करो, इसको कुछ नोटेशन दे दो, इसको डबल स्टार यदि पुट किया, पुट इन डबल स्टार we get x equal to 96 plus 5 times -19। कैलकुलेट करते हैं, 96 माइनस कितना 95, तो दिस इज इक्वल टू 1, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, एंड y इक्वल टू -336 माइनस 18 टाइम्स -19, t की वैल्यू रखा, तो दिस इज इक्वल टू -336 माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 19। अब ये फाइंड करना है, वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक से देख लेते हैं। 18 इंटू 19, पहले ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गिव्स 1, फिर ये वर्टिकल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उनका एडिशन, 9 1 जा 9, 8 1 जा 8, दोनों का एडिशन 9 प्लस 8 17, और फिर ये वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन 72, 8 9 जा 72। तो आंसर लिखते समय ये डिजिट 2 अपनी जगह, इसको इधर कैरी किया, 17 प्लस 7 24 और 4 और 2 कैरी किए, तो 2 प्लस 1 3। तो दिस इज -336 प्लस 342। अब ये दोनों का एडिशन, ये पॉजिटिव नंबर इससे ग्रेटर है तो कितना हो गया 6, दिस इज 6। तो therefore x equal to 1 and y equal to 6 is positive integer solution of given equation, is positive integer solution of given equation 1, and this completes the solution। These are the homework in 3 different languages जो अभी हम प्रॉब्लम के साथ बात कर रहे थे। फर्स्ट लैंग्वेज इज which of the following Diophantine equations cannot be solved, step 1 only। Then determine all solutions in the integers of the following Diophantine equation। इंटीजर सॉल्यूशन की बात करनी है अप टू स्टेप 2, स्टेप 1 भी होगी इसके लिए।
पहले तो चेक करना होगा सॉल्वेबिलिटी और फिर बाद में स्टेप 2 टू फाइंड इंटीजर सॉल्यूशंस। और यदि आगे बात हो रही हो कि डिटरमाइन ऑल सॉल्यूशंस इन द पॉजिटिव इंटीजर, बहुत केयरफुली रीड करना होगा। तो फिर पूरा स्टेप 1 सॉल्वेबिलिटी के लिए, स्टेप 2 इंटीजर सॉल्यूशन के लिए, स्टेप 3 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए विद द कंडीशन x greater than 0, y greater than 0, find value of t and then put value of t in all solution to get positive integer solution। तो इसके साथ डायफंटाइन इक्वेशन का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। एक अपील, यदि अभी तक आपने गणित दर्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। समय समय पर टॉपिक से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड जो भी वीडियोस अपलोड होंगे आने वाले समय में, उसकी जानकारी आपको मिलते रहेगी और आप गणित दर्शन यूट्यूब चैनल के साथ अपना सिलेबस बड़ी आसानी से कंप्लीट कर सकेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।